the day. Choose, if people get a chance to choose life between work and spending most of the time working, they would choose not to work. यही था, agree or disagree? I think we Yes, ma'am. discussed it, है ना? अच्छा हमने ये, अपने डिस्कस कर लिया था ये। हाँ ये वाला डिस्कस करा था, जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब नहीं सिक्योरिटी। No, ma'am. No, ma'am. नहीं, ओके, यही था चलो, वही है। हाँ ओके, सो दिस इज द essay that some people think job satisfaction is more important than job security, and you know these job essays are equally important, चाहे ये वाला टॉपिक है, equally important for academic and general. okay, जॉब सिक्योरिटी वर्सेस जॉब सेटिस्फेक्शन ऐसे जीटी में भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे पता है क्या है, some people think job satisfaction is more important than job security, while other people think that people cannot be expected to enjoy a job and having a permanent job is more important. तो permanent job का क्या मतलब है, job security, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो लोग है ना, वो दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एंजॉय अ जॉब, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं एक्सपेक्टेड की जानी चाहिए, और परमानेंट जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। नाउ अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज अ डिस्कस essay and there are students every day in my class who are new joinees, so I do not want to make them feel कि अगर उन्होंने पहले की क्लासेस मिस करी हैं तो उन्होंने कुछ मिस करा है। So I'll be discussing how to handle a discuss essay. ठीक है? And I've muted all of you. If anybody has any question, you may unmute and ask. Okay? And otherwise, the पीछे से background noise है. I would really appreciate अगर आप mute रखें अपने आप को जब तक आपने कुछ पूछना नहीं है. ठीक है? ओके, सो डिस्कस एसे का क्या फॉर्मेट होता है? डिस्कस एसे का फॉर्मेट होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं, बाकी लोग वो कहते हैं, आप ये और वो दोनों को डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था तो मेरे को ना डिस्कस ऐसे और ओपिनियन ऐसे में एक ही फर्क पता चला था। आई आई सर्च्ड अ लॉट एंड आई रेड अ लॉट ऑफ essays from the IELTS books which were available in the market, and what I could take out was that in a discuss essay you do not have to give your opinion in the intro and only give it in the conclusion, but in an opinion essay you give your opinion in the intro as well as in the conclusion. But we have changed this format about 2-3 years back. मैं स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि in every essay your opinion in the intro, your stand in the intro is a must. Why do I say that? This is because that they have changed the band descriptors, and if you just read the band descriptors for 7 band, to qualify for a 7 band you need to take a stand in the intro. And what does a stand mean? Stand का क्या मतलब है? Opinion. अगर आप अपना stand लेते हो means आप अपने opinion दे रहे हो intro में, ठीक है। तो चाहे डिस्कस ऐसे हो चाहे कोई और ऐसे हो, आपका एक स्टैंड होना चाहिए कि आप क्या सोचते हो, दैट शुड बी देयर इन द इंट्रोडक्शन। गॉट इट? ओके, तो अब Yes, अब ma'am. हाँ, अब हमने what we have to do is just see paraphrasing. Some people hold the opinion that job satisfaction is more important than a secure job, while others argue that it is not realistic to expect job satisfaction and thus it is beneficial to have a permanent job which is secure. So basically कुछ लोग कहते हैं job satisfaction is more important, other people say security is more important. Just give me 1 second. So ये पैराफ्रेजिंग होगी फर्स्ट सेंटेंस में, उसके बाद देयर इज दिस सेंटेंस which says that
डिस्कस एंड ओपिनियन सेम थिंग नहीं है, मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। डिस्कस ऐसे में ना हमने ये लाइन लिखनी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कुछ लोग वो कहते हैं। ओपिनियन ऐसे जब आएगा उसकी भी बात कर लेंगे, पर अब हम डिस्कस ऐसे में यहाँ पे ओपिनियन नहीं देते थे, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग इट फ्रॉम द पास्ट 2-3 years. ओके, सो दिस essay intends to analyze both viewpoints and गिव ओपिनियन। हम ऐसे लिख के बंद कर देते थे कि ओपिनियन एंड में देंगे, पर अब ऐसे नहीं करते, अब हम यहाँ पे ही अपना ओपिनियन दे देते हैं उसके बाद। आई होप दैट इज क्लियर। Yes, ma'am. ओके, सो दिस essay intends to analyze both viewpoints. मैम हाँ बोलो। मैम ऐसा क्यों है? लाइक वी कैन आल्सो राइट कि वी विल गिव इट द ओपिनियन बिफोर गिविंग अ लॉजिकल कंक्लूजन, सो हम ऐसे हाँ, भी तो लिख सकते हैं। पर फिर वो आपका स्टैंड नहीं ना आया इंट्रो में, देन यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर A7. व्हाई टू गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी? ओके ओके ओके, सो इट इज बेटर कि जो ये आइल्स वाले जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स है उन पे स्टैंड करो। देखो कल हमारे रिजल्ट में आवर स्टूडेंट तबस्सुम, एकेडमिक स्टूडेंट, शी गॉट 7.5 इन राइटिंग। यू नो, दैट्स सो गुड Yes, टू नो, ma'am. है ओके। ना? Yes, ma'am. उनके I saw हाँ the screenshot. Yes. हाँ, तो 7.5 राइटिंग में है, और जो मेथड्स हम बता रहे हैं वैसे लिख के शी गॉट द करेक्शंस आल्सो डन फ्रॉम अस, शी इज गॉट अ 7.5। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। उसको वो आया था, प्रोसेस आया था 25th को, ठीक है? प्रोसेस एंड एसे था वो, शॉपिंग हैज टर्न्ड इनटू अ लेजर एक्टिविटी। Oh, हाँ okay. हाँ, she got that, she got a 7.5 in writing। 7 राइटिंग में हमारे बहुत बच्चों के आए हैं, 7.5 इतने बच्चों के नहीं आते हैं। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो ऑनेस्टली उसने ये लिखा है कि आई यूज्ड योर मेथड्स ऑफ राइटिंग। ओके, और उसने करेक्शन वर्क भी Okay, लिया। ma'am. शी इज गॉट 7.5। आप इन चीजों को आप लिख सकते हो वैसे भी ना, पर जब आपको पता है कि ये बेटर है तो ऐसे करो, ठीक है? हाँ, दैट इज इट। चलो, एनीवेज, मैम हाँ बोलो। मैम लास्ट में लिखना है गिव योर ओपिनियन, वो फिर ओपिनियन वाला ऐसे नहीं होगा ये लास्ट में नहीं जो लाइन नहीं लिखी? नहीं नहीं नहीं, अब ना ये बात मान के चलो कि जिस एसे में डिस्कस बोथ पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स करने हैं ना, वो डिस्कस एसे है। उसके बॉडी पैराग्राफ्स को भी वैसे शुरू करना है। मैं आई एम कमिंग टू दैट। ओपिनियन ऐसे होता है, यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन दे दिया ना, तो यहाँ पे आपने सम पीपल से अदर पीपल से करना ही नहीं है पूरे एसे में, वो सारा आपका ओपिनियन है। ओके, शुरू से एंड तक। पर डिस्कस ऐसे में आपने यहाँ पे ये लिख के कि मैं दोनों ओपिनियंस डिस्कस करूंगी, उसके बाद आपने करूंगी या करूंगा, उसके बाद आपने आई पर्सनली कंसिडर, जो आपका व्यू पॉइंट है वो यहाँ पे लिखना है। आप छोटी सी लाइन में भी लिख सकते हो दैट पर्सनली आई एम इन फेवर ऑफ द फॉर्मर व्यू, या पर्सनली आई एम इन फेवर ऑफ द लैटर व्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप अपना ओपिनियन पूरा खोल के लिख सकते हो। आई पर्सनली कंसिडर दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इज शॉर्ट लिव्ड एंड हेंस एम्प्लॉइज शुड प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी ओवर सेटिस्फैक्शन। तो मेरे को है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या प्रायोरिटाइज करना है, किसको पहल देनी है? सिक्योरिटी को ओवर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को बाद में कंसिडर करें, सिक्योरिटी को पहले कंसिडर करें, ठीक है? तो मैंने जॉब सिक्योरिटी को मोर इंपॉर्टेंट करा है, मेरा व्यू ये है। तो मैं कौन सी साइड के साथ हूँ? लैटर व्यू के साथ, ठीक है? लैटर इज पीछे वाला, जिसकी हमने बाद में बात करी है, ठीक है? अब मैंने पूरा खोल के अपना ओपिनियन दे दिया है। जो जो हमने वैसे अभी जो डिस्कस एसेज इंद्रूप लिखता है उसमें तो वो कहता है मम्मी ये वाली लाइन भी सुपरफिशियल सुपरफ्लुअस है, इसकी भी जरूरत नहीं है कि इन दिस एसे आई विल एनालाइज बोथ व्यू पॉइंट्स। बिकॉज वो आपने जब लिख दिया सम पीपल अदर पीपल, और यहाँ पे भी आपने पैराग्राफ में वैसे शुरू करना है, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि बोथ व्यू पॉइंट्स डिस्कस करे हैं स्टूडेंट ने। आपने सम पीपल से दिस, अदर पीपल से दैट, और अपना ओपिनियन दे देना है। बट आई मेक माई स्टूडेंट्स राइट दिस लाइन कि एग्जामिनर को और क्लैरिटी हो जाए कि आपको अंडरस्टैंडिंग है दिस इज अ डिस्कस एसे, एंड that you are going to discuss these two things in your essay, two viewpoints in your essay, right? Okay, ma'am. हाँ, तो आप ऐसे इसको अटेम्प्ट करो, एंड बिलीव मी वी हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स गेट वेरी गुड बैंड स्कोर जब डिस्कस ऐसे आता है और ये वाला फॉर्मेट लगा देते हैं ठीक से। Ma'am, in any discuss essay, we can write this line. This essay intends to analyze both viewpoints. हाँ बिल्कुल, मैं तो लिखवाती हूँ। हर डिस्कस ऐसे में ये लाइन तो लिखी देनी है, मतलब लिखनी इंट्रो है, में। उसके बाद अपना व्यू पॉइंट लिखना है। ओके मैम। उसके बाद अपना व्यू पॉइंट लिखना है, पहले नहीं, ठीक है? यस मैम। हाँ।
ठीक है, ये अपना अपना व्यू पॉइंट जरूर लिखना है उसके बाद। अच्छा चलो, अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बता रही हूँ आपको कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ इज द टॉपिक सेंटेंस। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है, दिस एसे इंटेंड्स टू एनालाइज बोथ व्यू पॉइंट्स, एंड ये जो नीचे आपने लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? thesis statement, ma'am. Very good. Thesis This is statement. the thesis statement. So thesis statement is very important, and the next important thing is the topic sentence. Topic sentence is the first sentence of every paragraph, which tells the examiner what the paragraph is going to hold. Okay. So अब देखो ये वाला जो topic sentence है, इसको देखो. On the one hand, there are many reasons why some people prioritize job satisfaction. अब मैंने कहा है कि एक तरफ बहुत reasons हैं क्यों कुछ लोग job satisfaction को priority देते हैं. They think job satisfaction is more important. ठीक है, अब ये लाइन पढ़ के पता चल रहा है इस पैरे में आपने जॉब सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं उनके रीजंस देने हैं, वो क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक सेंटेंस, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक सेंटेंस. और दूसरी लाइन, दूसरे पैरे की फर्स्ट लाइन देखो. ऑन द अदर हैंड, the main reason given by those who favor job security is that it ensures better productivity. तो जो लोग कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि उसका मैंने, अच्छा मैं आपको ना एक प्लेन पेपर पे ये करके दिखाती हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, ये हमारा एस्से है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, Okay, ma'am. हाँ, इंट्रोडक्शन हमने कर ली, इंट्रोडक्शन मैं रिपीट नहीं करूंगी. ठीक है, अब जो बॉडी पैराग्राफ्स है ना, बॉडी पैराग्राफ के आप शुरू कर सकते हो. बॉडी पैराग्राफ 1 का स्टार्ट कर सकते हो, BP1 का स्टार्ट कर सकते हो. ऑन द वन हैंड, comma, there are many reasons why some people say that job satisfaction is more important. ठीक है, अब उसके बाद आपने करा फर्स्टली. ठीक है, फर्स्टली करके आपने कॉमा डाल के फिर अपने पॉइंट्स डालने हैं. ठीक है, अब दूसरा पैरा शुरू कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड, those who say that job security is more important give, बोलो आगे. Give their reasons Give as their follows. reason as follows. As follows. ठीक है, अब मैंने ना ये देखो, on the one hand there are many reasons why some people say this, or on the other hand those who say that job security is more important give their reasons as follows. फिर इसके आगे आप लिखोगे to begin with, या the primary reason is that, मतलब चेंज कर देना. फर्स्टली सेकेंडली आपने पहले पैरे में करा है, इस पैरे में फर्स्टली सेकेंडली मत करना. ये भी बात आपको समझ आ गई? मैं तभी आपको अलग पेज पे ये बात करा रही हूँ. ये समझ आ गई आपको बात? एक पैरे में Yes, ma'am. और दूसरे पैरे में Yes, टू ma'am. बिगिन विद अनदर रीजन इज दैट फाइनली कर देना. ठीक है, जब आपने और चीजें डालनी है, इसको एक्सपैंड करना है. अब अगर आपने एक ही पॉइंट से अपना ये जो लाइन बनानी है, एक ही पॉइंट से, मतलब आपने देयर आर मेनी रीजंस नहीं करना. सपोजिंग आपके पास या तो पॉइंट ही एक है या वो एक और मेथड है शुरू करने का. ठीक है, तो आपने कैसे करना है? ऑन द वन हैंड, यहाँ पे मैं और लिखती हूँ, और आप कैसे कर सकते हो? ऑन द वन हैंड, कॉमा, the main reason why some people
say that job satisfaction is more important. अब यहाँ पे ना कई लोग यहाँ पे बिकॉज लिख देते हैं, अब वो बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए मैं आपके सामने लिख के करा रही हूँ स्लो मोशन में, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत बोरिंग नहीं लग रहा मेथड, और आप नहीं, आपको नहीं। हाँ No, बोरिंग ma'am. हाँ on the one hand, the main reason why some people say that job satisfaction is more important is that और बाद में आपने वो अपना पॉइंट रखना है, जो ये वाले मेथड में आपने फर्स्टली के बाद रखना है ना, वो पॉइंट आपने यहाँ इज दैट के बाद ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा भी दे सकते इज दैट, और फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आना और पूरा पॉइंट आएगा। ये समझ आ गई आपको बात? ये समझ, हाँ, तो यू कैन आइदर स्टार्ट लाइक दिस और यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। सपोजिंग यू हैव more than one point, then this is a good method. And supposing even if you have 2 points, even then you can write like this the first sentence and then say another benefit is that, or you can say second. Okay, you can say like that. The main reason, main की जगह आप और कौन से word डाल सकते हो? The primary reason, the principal reason, okay, the most important reason, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, प्रिंसिपल PRINCIPAL वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, अपने ऐसे शुरू करने हैं। अच्छा, जब दूसरा पैरा शुरू करना है, on the other hand those who say that, जब those वाला सेंटेंस बनाते हो तो ये वाले 5 वर्ड्स बच्चे खा जाते हैं, यहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, the sentence comes to 5.5. Okay, you have to give their reasons as follows. Okay, ये आप ये बच्चे खा जाते हैं वर्ड्स, तो मैं इसलिए इसको स्लो मोशन में करा रही हूँ। अगर आपको डिस्कस ऐसे आ जाए, आपको इंट्रोडक्शन लिखनी आ रही है, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ लिखना आ रहा है अच्छे से, और आपको अपनी कंक्लूजन लिखनी आ रही है, तो यू आर डन विद योर एसे। बहुत अच्छा, आपका 6 से तो कम किसी हालत में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ओके, सो यू शुड ऑल प्रैक्टिस। इस बार मैं मॉक टेस्ट में डिस्कस ऐसे देने वाली हूँ, ठीक है। मैम ये जो सेंटेंस है गिव देयर रीजन एज फॉलो, ये भी डिस्कस ऐसे में ही आएगा या सभी ऐसे में लिख सकते हैं? देखो, आपने सभी ऐसे में कैसे लिख सकते हो, जब बाकी जितने भी ऐसे हैं वो आपका व्यू पॉइंट है, अदर पीपल का व्यू पॉइंट है ही नहीं। यस मैम। तो ये सिर्फ डिस्कस ऐसे में आएगा। बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा ये बात। ओके, ये क्योंकि बाकी ऐसे कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने किसी और के व्यू पॉइंट रखने हैं, क्योंकि आजकल हम जो मेथड हम करा रहे हैं, आपको एक हमने स्ट्रीमलाइंड मेथड दे दिए हैं। तो जो आजकल हम मेथड करा रहे हैं उसमें पता है क्या है, उसमें हमने ऊपर आपको वाइल वाला सेंटेंस बना देते हैं, तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसी और के व्यू पॉइंट रखने हैं, और अपने व्यू पॉइंट से ही पूरा ऐसे देना है। जब हम मैम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले ऐसे में क्या उसमें देखो, देयर आर एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, राइट द वो जीटी वाली बुक में ऐसे हैं कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन, तो वो आपके ही व्यू है ना, उसमें डिस्कस बोथ व्यूज नहीं है ना, सम पीपल से अदर पीपल से अगर नहीं है ना, तो वो आपके ही व्यू है, समझ गए। उसमें भी आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, और मैम उसमें अगर जो डिसएडवांटेज हमें ज्यादा बताने हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो ना, वाइल वाला सेंटेंस बड़ा इजी सेंटेंस है, उसकी मास्टरी कर लो। वाइल देयर आर अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, द डिसएडवांटेजेस आर फार मोर। मैम एक आपने एजेस ओवर वाली लाइन बताई, एज ओवर वाली लाइन है, वाइल देयर आर अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, द डिसएडवांटेजेस एज ओवर देम। अच्छा मैम जो वाइल वाले में भी एज ओवर आ सकता है, पर मेरी बात सुनो, एज ओवर का क्या मतलब है? अगर आपके जो फायदे हैं नुकसानों से थोड़े से ही ज्यादा हैं तो एज ओवर यूज करना। एज ओवर का मतलब है हल्के से ज्यादा। यू मीन अगर एज सिर्फ ऊपर है, एज ऊपर है, मतलब एक एज एक सिरा ऊपर है, तो इसका मतलब थोड़ा फर्क है ना। पर अगर आपने कहीं लिखा है कि डिसएडवांटेजेस आर फार मोर, फिर एज ओवर थोड़ी जचेगा, आप सोचो। फिर आउटवे तो कर सकते हैं, आउटवे तो लिख सकते हो, आउटवे तो है ही है ना। द डिसएडवांटेज आर आउटवे। हाँ, ठीक है। मैम वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस फिनोमेनन
हाँ, but I believe the pros are far more, but I believe the cons हाँ are far more. ठीक है, जब तक आप ये far more या कुछ edge over नहीं लिखोगे, आपका स्टैंड नहीं ना आएगा. तो मैम स्टैंड लेना, एडवांटेजेस में भी तो वाइल वाला आ सकता है ना हाँ बिल्कुल आ सकता है वाइल वाला. ठीक है. मैम जैसे इसमें एक इंट्रोडक्शन सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं इन द स्टार्टिंग हाँ that whereas हाँ. sorry whether importance to be given to job satisfaction हाँ or job security has हाँ always been a debatable issue. हाँ, इस ऐसे में लिख सकते हैं डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज एक्चुअली डिबेट ही है ना. कुछ लोग कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है. आप लिख सकते हो हैज ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट. मैम Whether- लाइन चाहिए जो मैंने बोली थी. हाँ, whether job satisfaction is more important or job security is more important has always been a topic of debate. हाँ. मैम ये- इसके बाद एक बार बता दीजिए. It is believed by some हाँ it is believed by some that importance हाँ. it is believed by some that job satisfaction is far more better than having a security. Having secure job. Okay, having secure job, correct. ठीक है. मैम जो वाइल पर बेटे ये वाला आपका डिस्कस बोथ व्यूज वाले ऐसे का नहीं टॉपिक बनेगा ना. अगर एक फार मोर इम्पोर्टेंट वेयर एज अदर से नहीं लिखोगे तो फिर वो आपने एग्री डिसएग्री का रोल दे दिया ना उसको. अगर एक ही व्यू है तो फिर नीचे आएगा डू यू एग्री और डिसएग्री. अगर है कि सम पीपल से दिस अदर पीपल से दैट, फिर आएगा डिस्कस बोथ व्यूज. ठीक Fine, है. ma'am. अगर आपको यही ऐसे आ सकता है सम पीपल से जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब सिक्योरिटी, डू यू एग्री और डिसएग्री. Okay, ma'am. फिर आप कैसे हैंडल करोगे. फिर आप सम पीपल अदर पीपल उसमें बिल्कुल नहीं डालोगे. फिर आप Yes, लिखोगे ma'am, वाइल yes. जॉब सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट आई बिलीव जॉब सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. फिर आप जॉब सेटिस्फेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो अपने व्यू से दोगे. देयर आर सम रीजंस व्हाई सम पीपल से नहीं करोगे. आपके व्यूज Okay, आ गए. yes. वंस यू हैव गिवन द ओपिनियन कि मेरे हिसाब से जॉब सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कह रहे हो जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है पर जॉब सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द होल एसे इज योर व्यू. सम पीपल अदर पीपल मत डालना उसमें. Okay, ma'am. Okay. ठीक है. और ये वाले टॉपिक सेंटेंस इस वे के नहीं बनेंगे उसमें. ठीक है. तो मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में आपको एक डिस्कस ऐसे का फॉर्मेट अच्छे से समझा दिया है. अच्छे से. मैम इन बच्चों ने आज फर्स्ट डे क्लास लगाई है, आपको कुछ लगा ऐसे कि कुछ पिछला नहीं अटेंड करा तो आज हमें समझ नहीं आया. नो मैम आ गया समझ. आ गया था. गुड गुड. मैम आज आपका बहुत अच्छा जी मेथड था आपका. ये अच्छा मेथड था ये वाला. मेरे को पता है क्या हाँ जी, लगता है बहुत कई अच्छा बार था जब मैं मैम. मैम हाँ, क्योंकि हम कितने भी एसेज रीड करेंगे ना जो हाँ. आपने आज फॉर्मूला बताया तो हाँ. इससे मच बेटर देना अदर्स. हाँ, तो आपको कुछ आसान हो गया ना. आपको डिस्कस ऐसे आ जी. जाए, आपको अच्छे से लिखना आ गया. ठीक है. अभी हम आगे चलते मैम हैं. आपने ये जो फर्स्ट लाइंस सारे बताई हैं ऐसे अभी है ऐसे ना करवा देना. पैराग्राफ स्टार्ट करने हाँ के हाँ लिए हाँ तो हाँ. अभी देखिए इसमें से अप्रोक्सीमेटली 40 वर्ड्स हो गए हैं. नहीं आप अब मैं इंट्रो आपको के बता रही हूँ, बजाय. हमने इंट्रो कंक्लूजन और ये वाली फर्स्ट लाइंस के साथ करा हुआ है. 100 कुछ वर्ड्स बनते हैं और 100 कुछ वर्ड्स बन हाँ जाए जी. तो आधा ऐसे हो जाता है. ठीक है ना. जी जी Yes, बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. मैम एक चीज पूछनी थी. मैम थैंक यू मैम. हाँ हाँ जी बोलो क्या पूछना है. मैम जब हमें अगर अकेला यही क्वेश्चन आए कि सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखो, हाँ अभी हमने लाइन लिखनी है कि यार फार मोर वाली जो आपने बताई थी, या सिर्फ पूछने पे लिखेंगे. हाँ ये ना, हाँ ये क्वेश्चन कई बार मेरे मन में आया है. मेरे पास ना इसका, क्योंकि मेरी किसी डायरेक्ट कभी किसी एग्जामिनर से बात नहीं हुई है इसके बारे में. उसमें वैसे जरूरी नहीं बनता, पर मैं कहती हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड लिख दो. ठीक है. उसमें जरूरी नहीं बनता है, बट आप लिख सकते हो और इक्वली भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो चलना चाहिए. बिकॉज सी आई बिकॉज बेसिकली इट इज नॉट आस्क्ड इन दैट एसे एंड एज इट इज व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड तो आपको उसका कोई नेगेटिव नहीं जाना चाहिए अगर आप नहीं बताते हो तो. ठीक है. मैम एडवांटेज डिसएडवांटेज में दूसरी बात नहीं डिफिकल्टी क्या आती है, आपको दोनों लिखने ही लिखने हैं. अगर आपको कोई एक ज्यादा लगता है तो आप लिख सकते हो, कुछ हर्ज नहीं है. आपने दोनों डिस्कस तो कर ही देने हैं ना. आपने एक एक्स्ट्रा लाइन ही लिखी है ना. और एक बात मैं आपको और बताती हूँ. अगर आपके 250 वर्ड्स का ऐसे है और आपने सिर्फ 250 वर्ड्स लिखे हैं और वो लाइन लिखी है, तो फिर वो लाइन अगर एग्जामिनर कहता है कि ये एक्स्ट्रा लाइन है, उसके वर्ड काउंट कम करेगा तो आपके वर्ड काउंट अंडर लेंथ हो जाएगा ऐसे. पर जब मैं आपको वैसे ही सजेशन दे रही हूँ कि आप 350 और 300 के बीच में ऐसे लिखो, फिर तो आपका अगर एक्स्ट्रा लाइन है अगर उसका वर्ड काउंट नहीं भी काउंट करते हैं तो भी ऐसे सही है ना. आप बताओ.
यस मैम। हाँ, तो आप थोड़ा लंबा ऐसे लिखना, इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा लंबा लिखना। रेपिटेशन वाले लाइन का वो वर्ड काउंट माइनस कर देते हैं। मैडम वैसे भी एक वर्ड काउंट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी क्या नहीं, मींस उनके परमानेंट जॉब है? बेटे आपको ना, मैं बलविंदर एक बात बताऊं, उनको एक एक वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा। एक नजर पड़ती है पेज पे और वर्ड काउंट दिमाग में आ जाता है। उत्तर हाँ, ठीक है। हाँ, तो आप ना ये ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, उनके पास भी टाइम नहीं है। मैम ऐसे- 300 का सही रहेगा है मैम? हाँ, 290 to 300, 310 वर्ड्स मैं बोलती हूँ, लिखो। दैट इज ठीक है, हाँ, ये मैं जरूर मैम कहती कई हूँ। बार हाँ, 308 या 309 वर्ड्स का होता है, तो इज इट ओके और नॉट? अरे मेरे जो बच्चे जिनकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, वो 350 400 वर्ड का ऐसे लिख के लाए हैं, 7.5 8 बैंड भी लाए हुए हैं। पर अगर ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उतना लंबा लिखने का नुकसान हो जाता है। समझ गए ये बात? हाँ, तो नुकसान नहीं अपना कराना, आपको प्रूफ रीडिंग का टाइम भी छोड़ना है। यू हैव 40 minutes only for the essay. Do not write more than 30 minutes. Yes, ma'am. I usually complete in 25 minutes. Yes, and give the rest of the time to revise, re-revise. Okay, so that अपनी कुछ mistakes निकाल लो। Got it? अच्छे से। मैम हाँ, बोलो। यहाँ जॉब सिक्योरिटी का मीनिंग परमानेंट जॉब है? जॉब सिक्योरिटी होती है डेफिनेटली, अगर आपको परमानेंट जॉब नहीं है तो आपको आपकी सिक्योरिटी कहाँ गई? देखो, आपको कभी भी, अभी मेरी किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया, आई थिंक स्टूडेंट इज देयर इन द क्लास, कि ऑल ऑफ ए सडन ले ऑफ हो गए कई कई एम्प्लॉइज अपनी कंपनी के। तो वो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी हुई? तो क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, चाहे गवर्नमेंट तो मैम, इसमें तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मैम सिर्फ गवर्नमेंट में हो सकता है, हाँ, प्राइवेट में तो कुछ पता ही नहीं है ना कब आपको बाहर हाँ निकाल हाँ, दें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसे मेरा सन इन लॉ है बाहर, बड़ी अच्छी कंपनी में है, ऑयल कंपनी है, बड़ी बड़ी अच्छी पे है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड है 24 घंटे, क्योंकि उन कंपनीज डाउन जा रही हैं और उनको पता है इन्होंने ले ऑफ करना है, किसी भी टाइम सुबह आपको पता चल जाएगा योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड, और आप गए, है ना? तो ऐसी फिर जॉब सिक्योरिटी ना हुई। पे तो बहुत ज्यादा होती है, गवर्नमेंट जॉब में काफी कम पे होती है, पर गवर्नमेंट जॉब के अपने मजे हैं, और मतलब आपको सिक्योरिटी है आपकी जॉब। अब देखो, एग्जांपल में डाल सकते हैं? कोविड के दौरान जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उन्होंने सफर नहीं करा, बाकी सबने पे स्लैश करी है। यस मैम। सबने करी है। ठीक है, हमारे साथ जो सुपर स्टोर्स हैं, मोर जैसे, इजी डे जैसे, वो मुझे पता चला है कि जिसको 8 दे रहे थे 1000 महीने का जो उनके अंदर है, उसके 4 कर दिया है, जिसको कितना भी दे रहे, सबकी उन्होंने कम करी है। ठीक है, क्योंकि अब क्या करें, जब इनकम ही नहीं है, जब कोई आ नहीं रहा है, तो कंपनीज को ये करना पड़ रहा है। प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब में ये सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, चाहे वैसे पे स्केल कम होएगा। मैम ये एग्जांपल भी डाल सकते हैं ना इसमें, क्या कहते हैं बिल्कुल अगर हम एग्जाम्पल डालो, बिल्कुल एग्जाम्पल डालो, ये तो एग्जाम्पल बनती है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। कोविड का तो मैम हर जगह इस टाइम एग्जाम्पल काम आ ही जाएगा। हाँ, कोविड का तो बिल्कुल मैम बिल्कुल। एग्जांपल हाँ, मैम अच्छा, आज हाँ, अभी ये देखो, हाँ बोलो, एज ओवर है अगर थोड़ा सा डिस्कस ज्यादा। ऐसे आज हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो। डिस्कस ऐसे हमने अभी जो डिस्कस किया, उसी तरह हम बाकी सब टाइप के ऐसे भी ऐसे ही कर ले, ये अच्छा मेथड है, इसमें ज्यादा हाँ समझ आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी करा रही हूँ आपको। अच्छा, ये देखो, ये वाला ऐसे दिख रहा है आपको नीचे जो मैंने हाईलाइट करा है, ये दिख रहा है? Okay. Nowadays, people think that the most important thing in life is job satisfaction. Without excellent career, life is meaningless. To what extent do you agree or disagree? Same essay है, पर Yes, format ma'am. different है। Okay? ये agree disagree है। अभी इसको लेते हैं, तो आपको ना agree disagree भी clear हो जाएगा। Okay? Okay. ये है, देखो, मैंने ये वाला ऐसे उठा लिया, सेम ऐसे है बट इन द एग्री डिसएग्री फॉर्मेट। ठीक है, ये ऐसे दिख गया आपको नीचे? हाँ, ओके ओके। अब हमने क्या करना है, हमने ना इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है और फर्स्ट सेंटेंसेस लिखने हैं ऐसे के, बॉडी पैराग्राफ्स के, तब आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी और आपके 2 तरह के ऐसे हो जाएंगे, एक तो एग्री डिसएग्री और एक डिस्कस ऐसे। ठीक है, एग्री डिसएग्री ओपिनियन ऐसे है। अब नाउअडेज पीपल थिंक, इसका क्या शुरू करोगे? इट इज thought, it is believed by some that, some people, मैम it is thought भी तो लिख सकते हैं। thought से believed better word है ना? It is believed by some people, some that, people की भी जरूरत नहीं है, some that,
job satisfaction. हाँ, that doing a job one loves is the best thing in life. मैं ना बहुत इजी आपको बता रही हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बता रही हूँ. Okay, best thing in life. Okay, तो बस यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देते टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल. ओके, सो आप अगली लाइन क्या बनाओगे? While job satisfaction is more important. is essential. मोर नहीं लिख सकते हो आप. अगर मोर लिख दिया तो आपने स्टैंड ले लिया यहीं पे. आप ये बात समझो. ओके, अब मोर लिख दोगे तो आपने तो स्टैंड ले लिया यहीं पे. ठीक है. While job satisfaction is important, comma, job security is definitely job security definitely edges over it. Is more important लिख सकते हो, वो ज्यादा वर्ड आ रहा है बार बार. Edges over it. ठीक है. मैम is advantageous on a whole. हाँ, ऐसे कर दो. Job definitely is more advantageous. Job security is definitely more advantageous. मैम job security has a more advantages तो लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं. Is definitely more advantageous on a whole. ऐसे on the whole लिखने. ठीक है. हाँ, I believe that. यहाँ पे I believe that आ सकता है. believe ज्यादा आ रहा था तो मैंने वो इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे. ठीक है. It is believed that is something. ये नहीं लिखे ना. Excellent career life. हाँ, वो मैं उसके लिए सोच रही हूँ कुछ इसके यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं. It is believed by some that doing a job one loves is the best thing in life, and nothing can be more important than a satisfying career. करियर के स्पेलिंग नोट कर लो. ठीक है. अब देखो मैम वो लाइन रिपीट हो गई मैम. while job satisfaction is important फिर रिपीट हो गया. important than essential career. क्या रिपीट? इंपॉर्टेंट वर्ड रिपीट हो गया. No मैम, ये जैसे लिखा है आपने nothing can be more important than a satisfying career. हाँ. फिर while job satisfaction is important. हाँ, तो वही उसी को रिपीट कर. देखो यहाँ लिखा है it is believed by some that doing a job one loves is the best thing in life and nothing can be more important than a satisfying career. While job satisfying career वही job satisfying हो गया ना. तो while job satisfaction is important, job security is definitely more advantageous. ठीक है. यहाँ पे आप इन माई ओपिनियन, यहाँ पर वाइल वाले सेंटेंस में यहाँ पे ऐड मत करो. ये बहुत अच्छा लग रहा है. सोफिस्टिकेटेड सा भी है, छोटा भी है सेंटेंस, और आपके लिए रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में, बनाना भी इजी है. ठीक है. सो दिस इज हाउ मेनी वर्ड्स? इफ इट इज 30-40 वर्ड्स, आई थिंक दिस इज 38 वर्ड्स. गुड इनफ. ओके. और जो कंक्लूजन है वो क्या लिखोगे? While I think भी लिख सकते हैं. हाँ, आई थिंक भी लिख सकते. हाँ, टू सम अप, कॉमा, to sum up, although कर दो अब यहाँ पे. although there is no denying. although job, there is no denying that job satisfaction is important. There is no denying that
job Job satisfaction is और is needed. satisfied job मैम ऐसे भी लिख सकते हैं. Satisfied job, job जो satisfied है, गलत हो जाएगा ना. Job satisfying होगी. Job की quality क्या है? Satisfying. Satisfied job है, job जो उसको satisfaction है, हाँ मुझे अच्छे बंदे कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, job की feeling नहीं बता रहे हम job की quality बता रहे हैं. अगर quality बताओगे तो ing form आएगी और feeling बताओगे तो ed form आएगी. ठीक है. हाँ. Although there is no denying that job satisfaction more एक important. मिनट, ये मेरा लिखा क्यों नहीं जा रहा. इज मोर इम्पोर्टेंट नहीं लिख सकते बेटे, आप बार बार वो कर रहे हो. मोर कर दिया तो आपका स्टैंड जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ चला गया, वो गलत हो जाएगा, है ना. आपने मोर इम्पोर्टेंट नहीं लिखना है ना इसको, आपने मोर Unimportant इम्पोर्टेंट. लिखना है. एसेंशियल लिख सकते हैं मैम. एसेंशियल. एसेंशियल वर्ड कर, जॉब सेटिस्फेक्शन इज एसेंशियल. Therefore, I believe. नहीं, although there is no denying that job satisfaction is essential, I believe that people should go for a secure job. थोड़ा change कर देते हैं tone, है ना. Yes. Yes. People should go for secure job. People should opt for secure job. Yes, ma'am. Yeah, people should consider मैम. हाँ, consider job security more important. ऐसे कर सकते हो, पर Yes, हमारा ma'am. Should prioritize भी कर सकते हैं. हाँ, should prioritize job security. ये ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. Opt का मतलब क्या होगा? Opt होता है choose करना, select करना, go for करना. ठीक है. अच्छा, अब इस ऐसे की first topic sentences कैसे जाएंगे paragraphs के. अब आपने किसी के व्यूज नहीं देने, आपके व्यूज हैं. अब ये रिमेंबर करो बात. ओके. ये what you have to remember is now it is your views. So first sentence क्या बनाओगे? There are many reasons. There are many reasons. There are many advantages. There are many advantages of doing a job which provides satisfaction. पहले satisfaction लिख दो, एक ही बात है. Satisfaction वाले point admittedly ये करके. So ये अब आपके views हैं. पता चल रहा है कि आपने किसी के views लिखे कि अपने ही लिख रहे हो. ठीक है मैम. अपने लिख रहे हो ना, तो इस वे का से टॉपिक सेंटेंस बनाना है एग्री डिसएग्री ऐसे में. ठीक है. आप समझो कि बाकी फर्स्टली सेकेंडली सारे वही पॉइंट्स आने हैं जो पिछले ऐसे में डाले हैं. ठीक है. बट कनेक्टर भी वही यूज होंगे. कनेक्टर्स भी पहले पैरे में फर्स्टली सेकेंडली कर दो, दूसरे में द प्रिंसिपल रीजन इज दैट. वो क्योंकि अब आपके व्यूज हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. सिर्फ टॉपिक सेंटेंस बदला ना, बाकी पैरा तो सेम रहेगा. ठीक है. तभी ऑन दी वन हैंड और ऑन दी अदर हैंड. हाँ, ऑन दी वन हैंड वो भी सेम रहेगा, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ओके मैम. एडमिटेडली जॉब सेटिस्फेक्शन हैज इट्स एडवांटेजेस, ये कर सकते हो. ओके. यू कैन ऑल्सो राइट. ये देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको मैं एडमिटेडली करा रही हूँ. एडमिटेडली आप ऑन दी वन हैंड ऑन दी अदर हैंड भी कर सकते हो. एडमिटेडली जॉब सेटिस्फेक्शन, हाँ, admittedly job satisfaction is admittedly there are many वही वाली लाइन लिखो ना. मैं चेंज मैं तो ऐसे लिख सकते हैं admittedly job satisfaction prioritize over वो फिर कुछ लोग कहेंगे ना. अब आप ऐसे लिखो admittedly there are many advantages of doing a job which provides satisfaction. यहाँ पे मैं on the one hand उसका दे रही हूँ ना आपको substitute. On the one hand कॉमा वन हैंड ही एक ही ठीक रहेगा. देखो ऑन दी वन हैंड करो तो अगले पैरे में ऑन दी अदर हैंड कर दो. जस्ट वन सेकेंड, जस्ट मैम.
I'm sorry, there was somebody at the door. Okay, so ये हो गया आपका. On the one hand, there are many advantages of doing a job which provides satisfaction. ठीक है? Yeah, admittedly, there are many advantages of doing a job which provides satisfaction. अब अगला पैरा आपने on the other hand करना है. अगर आपने यहाँ पे ऐसे शुरू करा है और अगर आपने ऐसे शुरू करा है तो अगला पैरा आप कैसे शुरू करोगे? However. However, sir. ठीक है? Admittedly अगर पहला पैरा है तो however अगला कर देना. अगर पहला पैरा on the one hand है तो on the other hand अगला कर देना. I hope this is clear. Yes. Yes, ma'am. और Ma'am, आपको ma'am. क्लैरिटी होगी एग्री डिसएग्री और डिस्कस को हैंडल करने में. Yes. मैम इसमें ये भी तो डिपेंड करता है ना कि हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो हाँ, फिर ऑन बिल्कुल. द अदर हैंड लिखेंगे on तो फिर वो तो फिर वो कोई फर्क वो नहीं तो पड़ता. लिखना ही आपने होगा. ऊपर देखो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. आपने देखो आपने लिखा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, जॉब सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों चीजों के लिए आपने यस करी है ना इंट्रो में. यस मैम। ओके तो आपने दोनों चीजें Yes, आपके ma'am. व्यूज हो गए. समझ आ गया आपको? हाँ जी हाँ जी आपके ही व्यूज हैं, आपके ही व्यूज हैं. अगर ऑन द वन हैंड है तो भी आपके व्यूज है, ऑन द अदर हैंड है वो भी आपके व्यूज है, क्योंकि आपने इंट्रो okay, में ma'am, लिखा है thank you. दोनों इम्पोर्टेंट है. मैम समझ यदि गए? एक जी, चीज को हाँ. प्रॉपरली जी. नेग्लेक्ट कर देते ना फिर नहीं लिखना था उसको। हाँ, अगर आप स्ट्रांगली जी. अगर आप पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं. अगर आप इससे स्ट्रांगली एग्री करते ना, आई स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, फिर आपने जी. सिर्फ जॉब सेटिस्फेक्शन के गुण गाने थे, फिर ऑन दी अदर हैंड वाला पैरा आना ही नहीं था. जी जी समझ गए? Right. मैम ये इन जो एडिशन वाला आ जाना था फिर. है, इन एडिशन वाला मैम लिख हाँ, सकते फिर थे. तो फर्दर मोर फाइनली करके आप तीनों पैरे बना देते. समझ गए? मैम फिर हम एक ही पकड़ते ना हमसे मैम. एक पकड़, फर्दर क्योंकि ऐसे टॉपिक कह रहा है जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. आई स्ट्रांगली एग्री, तो आपने जॉब सेटिस्फेक्शन के ही फायदे लिखने हैं, दूसरा तो है ही नहीं कुछ. फिर यस मैम, तो मैं मोर ओवर या फर्दर मोर यही हाँ, करके ऐसे करके पैरे शुरू होंगे. तो अगर आपको ये चीजें आ गई ना, इफ यू नो हाउ टू हैंडल अ एसे, हाउ टू हैंडल एनी एसे लाइक दिस, आपको आ गया. डिस्कस ऐसे आ गया. देखो एक ही ऐसे आपको डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकता है. अभी आपके सामने एग्जांपल है इस चीज का. यू गेट माय पॉइंट? बच्चे कहते हैं मैम वही ऐसे आ Yes. गया जॉब सेटिस्फेक्शन वाला, जॉब सिक्योरिटी वाला, पर क्या आया डिस्कस के एग्री डिसएग्री. वो लाइन तो याद नहीं मैडम, नीचे क्या थी वो नहीं याद. अगर वो नहीं याद तो आपने ऐसे क्या लिखा, मेरे को ये बताओ. समझ गए? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. दैट डिपेंड्स, दैट डिसाइड्स हाउ यू हैंडल द एसे. ओके? Yes, ma'am. मैम यहाँ एंड के Yes, पहले ma'am. कॉमा आएगा यहाँ पे लाइफ। हाँ, कहाँ पे? मैडम थिंग इन लाइफ कॉमा एंड नथिंग कैन बी मोर। हाँ, ये ना एंड के पहले ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. यहाँ पे अलग क्लॉज है, उसके पहले कॉमा हमेशा बेटर है. ओके? ठीक है क्योंकि मैम। हाँ, समझ गए? पूरा मैम यहाँ वन लव्स का मतलब क्या है? वन लव Intro में? जो बंदा लव करता है किसी जॉब को, जॉब सेटिस्फेक्शन उसी में होती है, लव करता है. अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम गेटिंग जॉब सेटिस्फेक्शन. ठीक है. एंड जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करती थी तो मैं ना सच बता रही हूँ, मैंने बहुत साल प्रैक्टिस करी है, 33 ईयर, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, काफी काम करा है, बहुत काम करा है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं थी कभी. रात जागनी पड़ती थी तो मैं दुखी होके जागती थी. ओह माय गॉड. एक और 33 आपने कर लिया फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है. My नहीं, God. अब देखो वो जरूरत थी तब. See, I had done this and it was my necessity. I had to bring up my children. I had to give them a good life. I had to teach them Yes, ma'am. in the best schools and colleges. So वो वर्क तो मेरा था, मैंने बहुत करा है. Once they were settled, I took to teaching. Once they were both settled, I took to teaching. Yes, ठीक है? ma'am. हाँ. Sometimes we do some jobs for our हाँ. requirement. यस, और We don't रिक्वायरमेंट want- हाँ, तो पहले तो Yes. वो थी ना, तब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी. अब मैंने सारी मेरी Yes, जो मतलब स्टेबिलिटी आई है लाइफ में, सिक्योरिटी आई है, वो उस अर्निंग से ही आई है. एंड उसकी वजह से ही मैं इस काम को स्टेप इन कर सकती हूँ विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट. राइट? Yep. Yes, हाँ. ma'am. Yes, ma'am. ये जॉब सेटिस्फेक्शन है. पर वो उसमें क्या था, चाहे मेरा अपना काम था, बट आई वाज हैविंग लाइक सिक्योरिटी की, उसमें तो इनकम फ्लो इन कर ही रही है. ठीक है? सो दैट इज इट. तो ये अब आपको दो तरह के ऐसे हैंडल करने आ गए. Yes, ma'am. एग्री जिनका फर्स्ट डे है, आई वांट वन टू स्टूडेंट्स फर्स्ट डे वाले बोले कि हमें समझ आ रहा है सब अच्छे Yes, से. ma'am. Yes, ma'am. ओके. अच्छा, चलो अभी कल मुझे एक और मैसेज आया बड़ा अच्छा. कल मुझे एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का जिसने मेरी क्लासेस सिर्फ क्लासेस लगाई हैं
और यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। उसके 8777 रिक्वायरमेंट थी जीटी में। कह रही मैम सिर्फ क्लासेस लगाई थी आपकी, हफ्ता 10 दिन आप हफ्ता लगाई है, हफ्ता ही लगाई है और यूट्यूब वीडियोस वॉच करे हैं एंड फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था 25 को, कल रिजल्ट है, शी गॉट हर 8777। ओके Congratulations to her, ma'am. जीटी का मैम, जीटी में जीटी का देखो सिंपल मेथड्स हैं, मैम आपको मुझे सिंपल भी मैम मेथड 8777 लेके आना है मैम। हाँ बिल्कुल लेके आना है आप सबको। और Yes, ma'am. मेरे लिए भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप सबके बैंड आए अच्छे, और मुझे Yes, अच्छे ma'am. मैसेजेस आए जिस दिन रिजल्ट आता है, मैं सब ग्रुप्स में शेयर करूं। आई रियली वांट टू Yes, शेयर द ma'am. मैक्सिमम प्लस रिजल्ट्स इन माय ग्रुप्स एंड इट इट गिव्स मोटिवेशन टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो कि जो हम पढ़ रहे हैं Yes, ठीक है, ऐसे करके हमारे बैंड आ जाएंगे। ये सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर। यस मैम, बहुत Yes, होता ma'am. है देख के। मैम यही है कि घबराहट निकल जाती है, जो हमने पहले गलतियां करी होती है ना, उससे समझ हाँ में आ गई कि अब हाँ वो गलती नहीं होगी, अब हाँ जो जाएगा बराबर जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैडम वो आपने लिखा था डिलीट कर दिया वो। जस्ट रिसेंटली मैंने क्या एग्जाम दिया था। मैडम क्या जब डिलीट आपने करा? आपने जो अभी लिखा था वो जो ऐसे, ये ठीक है मैम, ये शेयर कर देना मैम। ये वाला यस मैम, यस मैम। ये वो उस फाइल इसको में भी है ना। screenshot, you can take the screenshot. हाँ आप ले लो, क्योंकि ये फाइल स्क्रीनशॉट तो मैं लेना। सेव नहीं करने वाली हूँ। ठीक है मैम, Yes. ठीक है 2 मिनट हाँ, रुक गया, मैं तो लिख भी लिया मैंने। आपने कर लिया ना। यस मैम। चलो अब हम वापस जा रहे हैं अपनी एसेस वाली फाइल पे। अगला ऐसे देखो, ठीक है। अब ये ऐसे भी सेम ऐसे है, पर इसको भी हैंडल करना, डिस्कस बोथ व्यूज है, तो थोड़ा सा इसमें आपने मैंने जो व्यू है उसमें थोड़ा सा अपना व्यू डाल दिया है। ये ऐसे है, सम पीपल थिंक यंग पीपल शुड बी फ्री टू चूज देयर जॉब। मतलब यंग पीपल को फ्रीडम होनी चाहिए, वो जो मर्जी जॉब चूज करें। ये एक तरह से किस तरफ जा रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहा है ना। यस मैम। हाँ यस मैम। अच्छा, तो बस आपको ये पता है कि आपको पॉइंट्स पता है, अब आपको ऐसे समझना है। सम पीपल थिंक यंग पीपल शुड बी फ्री टू चूज देयर जॉब, बट अदर पीपल थिंक दे शुड बी रियलिस्टिक एंड थिंक मोर अबाउट देयर फ्यूचर। पर बाकी लोग कहते हैं रियलिस्टिक हो और फ्यूचर का सोचे, तो बाकी लोग क्या कहते हैं कि वो क्या चीज देखें? मॉनिटरी बेनिफिट, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है ना। सिक्योरिटी। कुछ लोग कहते हैं यंग पीपल को फ्रीडम दो, जौन सी मर्जी जॉब करें, मतलब अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन वाली जॉब करें, ठीक है। दूसरे लोग कहते हैं कि उनको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, उनको रियलिस्टिक होना चाहिए, उनको अपना फ्यूचर देखना चाहिए, उनको सिक्योर जॉब करनी चाहिए। समझ आ गई? हाँ ठीक है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो ये सेम ऐसे, अब मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी, अब आपको पता चल गया। अब young people कर देना, why young people, why some people say that young people should go for job satisfaction. On the other hand, there are many reasons. Yeah, those who say that young people should be realistic and think about job security give their reasons as follows. तो ये समझ आ गए फर्स्ट लाइन। और मैंने अपने में कह दिया कि बच्चों को ना, यंग पीपल को अलाउ करना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और अपना चोजन, अपना सिक्योर पाथ छोड़ के अपने अपने उस पे जाने की उनको चॉइस देनी चाहिए। बिकॉज आजकल के बच्चों को वो पता है जो हमारी एज के लोगों को नहीं पता। ओके, टुडेज यंग जनरेशन विल नो कि कंप्यूटर गेमिंग में फ्यूचर है। टुडेज यंग जनरेशन विल नो कोडिंग में फ्यूचर है। हम कहेंगे ना बाबा, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, या ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स रखो और कुछ ऐसा करो। तो हमारे को तो ये 3 फील्ड्स दिखती हैं, पर बच्चों को बहुत फील्ड्स दिखती हैं आज के बच्चों को, ठीक है। तो उनको अलाउ करना चाहिए। कंप्यूटर एनिमेशन आज से 10-15 साल पहले बहुत पॉपुलर हुआ कोर्स, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में भी, इसमें भी कुछ स्कोप है, ठीक है। सो अगर ऑनेस्टली अगर ऐसा कोई कहे, मेरे बेटे ने मुझे प्लस टू में कहता है मुझे नहीं नॉन मेडिकल करना, ये मुझे नहीं है करना, मुझे तो ऑथर बनना है, मैं तो नॉवल लिखूंगा। मैं चुप करके बैठ जा, पहले इंजीनियर बन जा या कुछ बन जा, फिर नॉवल लिखना, जो करना। अभी तो तू जो एक लाइन में जा। मतलब ऑनेस्टली पेरेंट्स तो यही कहेंगे ना कि पहले कुछ सिक्योरिटी के तरफ जाओ, या इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ बनो लाइफ में, फिर जो आपका मन करे करना। पर ये ऐसे कहता है कि कुछ लोग कहते हैं यंग पीपल को चूज करने देना चाहिए, और दूसरे कहते हैं कि उनको सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। तो आपने अपने व्यू ऐसे लिख देना। अब आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सेम पॉइंट्स आएंगे ना? सेम पॉइंट्स हैं बेटे, वही तो मैं कह रही हूँ। आपके बुक में 430 एसेस हैं, बेसिकली आपको हैंडल करना आ जाए। आपको इतने लंबे नहीं है, आप इकट्ठे पढ़ोगे जॉब एसेस, आपके एक दिन में जॉब एसे हो जाएंगे। इकट्ठे पढ़ोगे एजुकेशन एसे, चाहे एजुकेशन एसे 90 हैं, आप 2 दिनों में एजुकेशन एसे कवर कर सकते हो, पॉइंट्स,
मैम पर कुछ ऐसे जैसे मीनिंग नहीं पता चलते ना, तो उसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ मनीषा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आप पता है क्या करना मनीषा, आपको हाँ ना, जी। आप अपने ग्रुप में जो ऐसे आपको नहीं समझ आए ना, आप अपने ग्रुप में डालो कि ये ऐसे मुझे नहीं समझ आया। वन और द अदर स्टूडेंट विल श्योरली रिप्लाई। अभी अभी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो जो छुट्टी पे घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर किसी ने कुछ गलत भी समझाया तो मैं जरूर उसको फॉलो करके आपको समझा दूंगी। और प्लीज हेजिटेट मत करो, दिस विल बेनिफिट एवरीवन। यस मैम। ओके हाँ, आप अपने ग्रुप में शेयर करो कि ये ऐसे का मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, हो सकता है मेरे से भी कुछ गलत लिखा गया हो, मैं भी उसको लुक इन एंड वी विल ऑल श्योरली हेल्प ईच अदर, राइट? यस मैम। हाँ, तो Yes, ma'am. उससे सबका बेनिफिट है, उससे सबका बेनिफिट है। आपका तो होएगा ही होएगा, जो आपको हेल्प करेगा उसको डबल बेनिफिट है। अभी एक जीटी के ग्रुप में एक स्टूडेंट ने मेरे ख्याल 10-12 क्वेश्चंस लिखे थे कि नहीं पता चल रहे, और एक और मेरी ग्रुप में है, मेरी नोन है बहुत, मनमीत है, शी आंसर्ड। आई थिंक परमिंदर आपने डाले थे क्वेश्चंस, उन्होंने सबके जवाब दिए हैं उसमें कि ये इसका आंसर ये है। आई डोंट नो, सम स्टूडेंट पुट, और सारे आंसर्स उसने समझाए हैं। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी, आई सेड सी स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग ईच अदर। हाँ आपने डाले थे? नहीं। अच्छा, और किसी ने डाले होंगे, बट यू नो उसने सारे आंसर्स दिए हैं, बड़े अच्छे से सारे समझ आए हैं। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू यू नो पुट योर क्वेरीज इन द ग्रुप। मनीषा ठीक है, गो इन फॉर दैट। ओके अच्छा, अगला अगला देखो, अगला ऐसे भी सिमिलर है पर इतना सिमिलर नहीं है। ये है ऐसे, as most people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual well-being. What are the factors that contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers? अब आप मेरे को ये बताओ, ये कौन सी कैटेगरी का ऐसे है? डायरेक्ट क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन मालूम कर रहे हैं मैं भी तो। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ एग्जामिनर को इन दोनों क्वेश्चंस का बताना है कि मैं अपने ऐसे में इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ, बस। दैट विल बी द थीसिस स्टेटमेंट। देखो कैसे लिखा है, there are many factors which influence an individual's job satisfaction directly or indirectly. In the following paragraphs, I intend to delve into the factors that contribute to job satisfaction and discuss how practical it is for workers to expect job satisfaction. मैंने आंसर दिया, मैंने एग्जामिनर को बता दिया, मैं दोनों चीजें डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे में। मैम उसमें ओपिनियन नहीं रहेगा? ओपिनियन एक तरह से पता है क्या, इन ऐसे में यही है कि आपने बताना है कि आपने ये बताना है आगे। बेसिकली आप सारा कुछ बताने लग जाओगे यहाँ पे तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना, इंट्रोडक्शन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ओके मैम, तो बताना नहीं है यहाँ पे मैम? यहाँ पे आप बता नहीं ना सकते हो, आप सारे फैक्टर्स लिखोगे, या तो देखो ऑल और नन लॉ है, या तो आप सारे फैक्टर्स यहाँ 1 2 3 4 करोगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ गए? और फिर आप हाउ रियलिस्टिक का भी आंसर देने लग जाओगे तो पूरा पैरा बन जाएगा। तो आपने सिर्फ एग्जामिनर को बता दिया, वो आपका स्टैंड हो गया, एक तरह से थीसिस हो गया कि अब मैं आगे आपको ये चीजें बताने वाली हूँ इस हिस्से में। उसमें स्टैंड है ही नहीं ना, आपने तो कुछ डिटेल में बताना है, बस वो स्टैंड है आपका कि मैं ये बताने वाली हूँ। गॉट इट? आपसे ये तो पूछा ही नहीं है कि एग्री कर रहे हो कि डिसएग्री कर रहे हो, आपसे ये तो पूछा ही नहीं है, तो स्टैंड वाला क्वेश्चन नहीं है ना ये। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को। अगर आप सारे फैक्टर्स लिखोगे इंट्रोडक्शन में ही पूरा ऐसे आ जाएगा, और अगर आप हाउ रियलिस्टिक का भी आंसर दोगे तो इंट्रोडक्शन में ही पूरा पैरा आ जाएगा, रियलिस्टिक वाला भी। तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो कि आगे आने वाले पैराग्राफ्स में मैं इसके फैक्टर्स बताने वाली हूँ और रियलिस्टिक बताने वाली हूँ कितनी है। ठीक है, अभी ना मैंने ये एक नोट करा है, कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं इन द इम्पेंडिंग पैराग्राफ्स। आप में से कभी किसी ने सुना ये वर्ड इम्पेंडिंग पैराग्राफ्स? नहीं मैंने तो नहीं सुना है? नहीं मैम। नो मैम। अच्छा चलो, इम्पेंडिंग हमारे कुछ बच्चे लिख रहे थे, तो मैंने ऐसे ही मैंने उनको पूछा आपको इम्पेंडिंग का मतलब पता है? कहते हैं हाँ, इम्पेंडिंग मींस आने वाले। ओके अभी मैं आपसे इम्पेंडिंग वर्क है, हाँ इम्पेंडिंग work कहते हैं, इम्पेंडिंग मींस आने वाले। सो आई सेड ओके, तो आने वाले, इम्पेंडिंग इज नॉट जस्ट आने वाले। ओके इम्पेंडिंग इज, एक मिनट, ये देखो अब मैंने डिक्शनरी खोली है,
impending is usually of an unpleasant event that is going to happen, है आने वाला है. अब unpleasant. अच्छा, अब अगर आप impending paragraphs लिख रहे हो, I'm going to discuss this in the impending paragraphs, तो आप क्या कह रहे हो examiner को, मेरे unpleasant paragraphs आ रहे हैं आगे? आने वाले. Be prepared for unpleasant things. So तो वो पता है वो फिर मैं कल उसको बता रही थी स्टूडेंट को, मैंने कहा आप ना जहाँ से भी पहले आपने करी है प्लीज आप ना ये टाइम खराब मत करो, आप उसको 0 कर दो और जो हम करा रहे हैं सिंपल वो कर लो, क्योंकि ना 15-20 दिन लग जाते हैं उनको ना वो भुलाने में और फिर अपना सिखाने में अगले 15-20 दिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है. लगेगा ही, बहुत सारी चीज रटा हुआ है. Agree मैम, agree. चीज रट रखा मैं बहुत सारी चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा, हाँ, तभी जाके कुछ होता है. बहुत सारी चीजों को पहले अनलर्न कराना पड़ता है फिर लर्न करवाना पड़ता है. वो अनलर्न जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है. पर वैसे एक बात है मतलब आई रियली एडमायर कि इतने अच्छे से कराते हैं कि भुलवाना मुश्किल हो जाता है. Yes, ma'am. Ma'am, I am proud. Ma'am, actually, ma'am, I am proud that ma'am मैंने आपको ही ज्वाइन करा पहले. मैम मैंने और कहीं नहीं जाके चक्कर काटे. Lucky. कोई वो है, चलो एनीवेज. पता है क्या, मुझे भी बड़ा ये ऐसा कोई कमेंट आता है, मुझे मेरे को डर लगता है अंदर से कि कहीं कभी भी अननोइंगली मैं कुछ गलत ना पढ़ा जाऊं. और मेरे को हमेशा ये होता है कि अगर मेरे को लगे कि मैंने गलत कराया तो मैं बता पाऊं सबको कि मैंने ये गलत कराया था, जिन को परमिंदर कुछ सुना नहीं, वो आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रैग आई डोंट नो. चलो नेटवर्क इशू है, कोई आवाज नहीं आई. एनीवेज चलो अब ये वाला देखो. अब इसको हमने क्या करना है कि फैक्टर्स बताओ. अब जॉब सेटिस्फेक्शन के फैक्टर्स क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स? जो आप वैसे 2-4 फैक्टर्स कर लो, उनसे पैरा बना लेना, मैं पूरा ऐसे नहीं जाऊंगी. मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दी. हाँ, अच्छी सैलरी मिलेगी तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होगी ना. यू विल नो यू आर गेटिंग. अच्छा, और क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ मिलेंगे. हेल्थ बेनिफिट्स में हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा. हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस हो और पर्क्स हो, प्रमोशन, चांसेस ऑफ प्रमोशन हो. ठीक है, गुड रिलेशनशिप मैम, गुड रिलेशन विद कलीग्स हो, एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा हो, है ना, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो. ठीक है, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज मिले. हाँ, अब वर्क एनवायरनमेंट में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक हमारे घर के पास ना एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना और उसके जो टॉप फ्लोर था, बिल्कुल टेरेस, उसके ऊपर टेरेस था, टॉप फ्लोर. वहां पे सारा क्लरिकल स्टाफ था, 20-25 क्लरिकल स्टाफ वहां बैठता था. तो टॉप मोस्ट ऑफिसर उस डिपार्टमेंट का, उसने ऐसे सरप्राइज विजिट करा. ही वेंट ऑन टू दैट टॉप मोस्ट रूम वेयर ऑल दोस क्लर्क्स वर सिटिंग एंड वर्किंग. एंड इट वाज द पीक समर सीजन, month of June, and he could not stand there for 5 minutes. Okay, terrace ऊपर और भगती हुई गर्मी. And the very next day, 10 ACs were fitted in that room. Big hall. Okay. Work environment, physical environment of work is also very important. Yes, ma'am. Okay. That is also very important for job satisfaction. So he says, how do these people sit here 8 hours a day and work? Okay. So that he got it done, but he had to visit that to come to know that this is needed. Right. Yeah. But he got it done. And that was an example setting की work physical conditions. आपको example दिया, आप ऐसे example डाल सकते हो. ठीक है, पर example पैरे जितनी लंबी मत बनाना, so छोटा सा ऐसे बना देना. For instance, if the office is very hot, then it has to be seen that air conditioners are fitted in there. Okay, so that the workers sit there peacefully and work the amount of hours there. Otherwise work efficiency कम हो जाएगी. बंदा अपने आपको पंखा ही चलता रहेगा, या ठंड है तो ठुर करता रहेगा अगर हीटिंग नहीं लगी तो ठीक है ना. ऐसे तो वर्क एफिशिएंसी कम डाउन हो जाती है. सो लाइक दैट यू कैन राइट. ठीक है, money is not a matter rather than we can do job satisfaction must. हाँ, तो आप ये लिख सकते हो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए फैक्टर्स में हमने मनी भी कर दिया. यहाँ पे मनी भी कर दिया, इंपॉर्टेंट है. और साथ में बाकी फैक्टर्स कर दिए, पर्क्स कर दिया, वर्किंग एनवायरनमेंट कर दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन कर दिया. आप कोई 2-3 पॉइंट्स उठा के पैरा बना देना.
ठीक है। और रियलिस्टिक वाला पैरे में क्या डालोगे? आई थिंक इट इज नॉट रियलिस्टिक बिकॉज एवरीथिंग एक जॉब से मिले वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यू हैव टू लेट गो समथिंग। अब जैसे मेरी नीस को वहां बाहर एक प्राइवेट जॉब थी विच शी वाज बीइंग पेड मोर, बट देन शी गॉट होल्ड ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब, यूके में है, तो उसने गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट कर दी। तो मैं उसकी पे ऑलमोस्ट यू नो हाफ ऑफ दैट थी व्हाट शी वाज ड्राइंग, बट शी ऑप्टेड फॉर दैट। तो आई आस्क्ड हर व्हाई, शी सेज कि वो जो प्राइवेट जॉब है वहां पे तो मुझे कभी भी बुला लेते हैं, वीकेंड पे भी बुला लेते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करवा लेते हैं, चलो ओवर टाइम दे देते हैं, बट आई कैन बी कॉल्ड। एंड गवर्नमेंट जॉब का जो उसको अब मिली है उसमें क्या पूरा सैटरडे संडे उसका फ्री है। ठीक है, थोड़े फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स भी दे दिए वहां पे, उसकी ऑफिस में फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स भी है कि अगर वो किसी दिन उसने छुट्टी करनी है तो बाकी दिन 1-1 घंटा ज्यादा काम कर सकती है, एंड देन शी कैन हैव 1 डे और 2 डेज ऑफ इन द वीक एक्स्ट्रा। तो ये ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, सैटरडे संडे पूरे छुट्टी है, शी इज एंजॉयिंग लाइफ। ठीक है, थोड़ी कम अर्निंग है, पर ये जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, शी कैन लुक आफ्टर हर चाइल्ड आल्सो मच बेटर। ठीक है, सो या आप ऐसी बातें, ऐसे एग्जांपल्स भी दे सकते हो दैट पीपल समटाइम्स गो फॉर। She also have a job security like that. जॉब सिक्योरिटी भी है। सी अभी जैसे कोविड हुआ, प्राइवेट जॉब्स में तो कई ले ऑफ हो गए, ठीक है, Yes. बट इनको तो परमानेंट अपना पूरा पे पैकेज मिलता रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। ठीक है, Yes. सो लाइक दैट यू कैन से। अच्छा, अगला ऐसे देखते हैं। In many countries, good schools and medical facilities are available only in cities. Some people think new teachers and doctors should work in rural areas for a few years, but others think everyone should be free to choose where they work. अब पहला सेंटेंस एक ना, फर्स्ट सेंटेंस जो है that is a fact. That is a fact. उसको कोई कुछ कह नहीं रहा, वो आपको फैक्ट दिया है। आगे आपके डिस्कस ऐसे वाला जो डिबेटेबल चीज है वो आगे शुरू हुई है। कुछ लोग कहते हैं, पहला जो फैक्ट है वो ये है कि अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल सिर्फ शहरों में हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो नए टीचर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनको ना रूरल एरियाज में काम करना चाहिए कुछ सालों के लिए। और यहाँ आपको पता है डॉक्टर्स की भी रूरल पोस्टिंग है, टीचर्स की भी रूरल पोस्टिंग है, जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उनको करनी पड़ती है, कंपल्सरी है ना। तो बस यही है कि कुछ लोग कहते हैं उनकी कंपल्सरी रूरल पोस्टिंग करो, ठीक है। बाकी कहते हैं कि ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई मैंडेटरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, जो जहां काम करना चाहे वहां करे। दोनों व्यूज डिस्कस करना और अपना ओपिनियन देना है। अब ऐसे डिस्कस ऐसे है, मैं इसको छोड़ रही हूँ, अब आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, डिस्कस ऐसे है ना, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू। तो अगला देखो, some people tend to take temporary jobs. They only work for few months of the year, for they have time to do other things. Do the advantages outweigh the disadvantages? Okay, अब ये है कि कुछ लोग जो है टेम्पररी जॉब्स करते हैं, ठीक है। हाँ, और वो मतलब they don't go for a permanent job, they go for a temporary job, ठीक है। क्या टेम्पररी जॉब के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? अब आप देखो, आपको इसमें क्या स्टैंड लेना है। मैंने इसके वाइल टेम्पररी जॉब के कुछ डिसएडवांटेज है, मैंने बेनिफिट आउटवे करा दिए, मैंने बेनिफिट्स डेफिनेटली ज्यादा लिख दिए टेम्पररी जॉब्स के, ठीक है। वैसे टेम्पररी जॉब में वो नहीं होता, पेंशन नहीं होती। आपको पता है अगर गवर्नमेंट एडहॉक पोस्टिंग्स करती है, आपको 90 डेज की पोस्टिंग्स आती हैं गवर्नमेंट की, आपको कहीं अवेयरनेस है आपको इस बात की? यस मैम, आई नो। तो उसमें फिर पेंशन्स नहीं ना होती बाद में, नहीं। तो ये है कि कुछ लोग परमानेंट भी नहीं होते हैं, वो परमानेंट भी नहीं होती, पर 90 डेज के लिए आपकी एक्सटेंड होती रहती हैं अगर आप सही काम करते हो। तो गवर्नमेंट को उसमें ये फायदा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को वो हैंडल कर ही रही है। जो अच्छे वर्कर्स हैं बाद में उनको रिटेन भी कर सकते हैं या वॉट एवर, आई डोंट नो। पर बाकी आप इसके देखो, सैलरी भी कम होती है मैम, इसमें सैलरी भी कम होती है, बहुत कम होती है सैलरी, हाफ पे होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। टेम्पररी जॉब के मैंने एक एडवांटेज पहले पैरे में लिखा कि रिलेटिवली आसानी से मिल जाता है। दूसरा देखो, खाली बैठने से तो टेम्पररी जॉब ही अच्छी है ना। दूसरा बेनिफिट है कि वैकेंसी अगर अवेलेबल हो जाए कंपनी में तो टेम्पररी जॉब वाले को सबसे पहले अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उसको पता है वो वही काम कर रहा है, ठीक है। एंड कंपनी को भी उसका पता है, ठीक है। और एक और मैंने बेनिफिट इस बारे में लिख दिया है कि बाय गोइंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, अ टेम्पररी वर्कर गेट्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। ये समझ आ गया पॉइंट आपको? यस मैम। यस मैम।
फिर मैंने एक पैरे में ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं। एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी फायर हो सकते हो, पर्क्स नहीं मिलते जो रेगुलर जॉब वालों को मिलते हैं, ठीक है। और मैनी टेम्पररी वर्कर्स को आइसोलेटेड जो है फील करवाया जाता है कंपनी में, उनको बाकी जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको लुक डाउन अपॉन करते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्ग गैप्स आ जाएं तो फिर फाइनेंशियल इश्यूज भी हो जाते हैं टेम्पररी वर्कर के घर में। तो फायदे नुकसान है, आपको समझ आ गया ऐसे? आप लिख Yes, लोगे? ma'am. यस मैम। हो जाएगा मेरे तो। हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे देखें, an increasing number of people change their career and place of residence several times during their lifetime. Is this a positive or negative development? ये मैंने कल ही लिखी है मैम। हाँ ये है, इसको क्या कहते हैं? जॉब हॉपिंग। हॉपिंग। अच्छा आपको मैंने उस दिन क्लास में अपने पूछा, मैंने कहा हॉपस्कॉच सुना है आपने? आपने सुना हॉपस्कॉच? नो मैम। आपने कभी अब सुना तो है मैम बट हाँ जब मैंने इसका मीनिंग बताना है ना तो आप सबने सुना होना है हॉपस्कॉच। मैम एक ऐप Hopscotch, I just had it as a app of kids का जिसपे कपड़े मिलते हैं। यस मैम। हॉपस्कॉच इज स्टापू। स्टापू खेला आपने कभी? Yes. स्टापू गेम है, जमीन पे क्रॉस ड्रॉ करके उसमें थोड़ा फेंकते ठीकरी और बच्चे हॉप कर करके उसको उठाते हैं। लड़कियां ज्यादा खेलती है वो। अच्छा चलो लड़कियां खेलें लड़के खेलें, आप बताओ, इस तो सुना हुआ है ना? सुना हुआ है मैम, देखा और भी हुआ है। उसको हमारे पंजाबी में तो स्टापू कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन अदर लैंग्वेजेस बट इट्स हॉपस्कॉच। ओके हम पीचो बोलते थे मैम उसको। क्या बोलते थे? पीचो। पीचो। ओके एक मिनट, मैंने ना मेरे को ये था कि हॉपस्कॉच बच्चों को मैंने अच्छे से कराया उस दिन। हॉपस्कॉच, ये देखो हॉपस्कॉच आ गया वर्ड। Yes, ma'am, pattern described. A children's game played on a pattern of squares marked on the ground. Each child throws a stone into a square and then hops, jumps on one leg and jumps along the empty squares to pick up the stone again. Yes, yes, I understand. ठीक है? Yes, हाँ yes. तो ये इसको तो अभी ये जॉब हॉपिंग क्या होती है? जॉब हॉपिंग देखें, इसमें जॉब हॉपिंग का मतलब है जॉब हॉपिंग। मेरे को ना बड़ा इंटरेस्ट आता है अगर ऐसे वर्ड्स नहीं है, ऐसे नहीं है। ओके चलो मैम वो स्विचिंग टू अनदर जॉब। Switching. हाँ Switching to one Switching. place. हाँ स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू द अदर, है ना, उसको जॉब हॉपिंग कहते हैं। अच्छा ये टॉपिक है कि एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल जो है, बहुत ज्यादा लोग आजकल अपना करियर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार बदलते हैं। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है? मैंने ये लिखा है। अब देखो तीसरी तरह का ऐसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने पहला क्या करा? डिस्कस। दूसरा सीधा सीधा एग्री डिसएग्री। और ये है अच्छा चौथा हो गया आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेज, ये भी कर लिया ना आज हमने। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर लिया। ओ माय गॉड। एंड दिस इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ये आज पांचवी तरह का ऐसे डिस्कस हो रहा है। तो ये एक तरह से बेसिक्स की क्लास भी हो गई, टाइप्स ऑफ एसेज हैंडलिंग। ओके सो आई थिंक मनीषा दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। यस मैम। है ना? आज आपको लग रहा है कि एडवांटेज है इसका? देखो सारे कितने तरह के ऐसे डिस्कस हो गए। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल अपना करियर चेंज करते हैं। इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? इसका भी कुछ डिफरेंट नहीं है, आपने यही लिखना है। व्हाइल देयर आर ए फ्यू पॉजिटिव्स द नेगेटिव्स आर मच मोर, व्हाइल देयर आर ए फ्यू नेगेटिव्स द पॉजिटिव्स आर मच मोर। जो आपने ज्यादा लिखना है वो ज्यादा लिख दो, वाइल वाला सेंटेंस बना के। मैम प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब कि ट्रांसफरिंग जॉब लाइक जैसे अपने पहले आपने जॉब कहीं करी, फिर आप किसी और शहर में जाके वहां कोई नई जॉब कर ट्रांसफरिंग जॉब। ट्रांसफरिंग, हाँ ट्रांसफर होता है। मतलब एक ही कंपनी में आप ट्रांसफर हो रही है, आप नई जॉब कर रहे हो कहीं और, तो फिर वो जॉब हॉपिंग हो गई। आपने जगह भी बदल ली और अपना जॉब भी बदल ली। हाँ जी बेटे बोलो। ये मैंने कल ही लिखा था, उसके इंट्रो में आपको सुना वो। हाँ बोलो। Globalization create many job opportunity, therefore many people switching job and house frequently. I believe that changing job is a overall positive development for individual and society both. हाँ पहला सेंटेंस दोबारा बोलना बेटे सुनल। Globalization create more job opportunity. ओके अब आपने लिखा है ग्लोबलाइजेशन क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। अब मुझे बताओ ग्लोबलाइजेशन को आप गिन सकते हो?
वन ग्लोबलाइजेशन। नहीं। तो उसके बाद जो वर्ब आएगा अनकाउंटेबल है तो वर्ब आएगा, उसमें एस आएगा कि नहीं आएगा? ओके। अनकाउंटेबल के बाद वर्ब में एस आता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, अब मेरी मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? मोर आपने वर्ड डाला है, किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो? नहीं। नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहते हो ग्लोबलाइजेशन क्रिएट करती है मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप कहना चाहते हो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं, ये कहना चाहते हो ना? तो हाँ। ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब आपके फर्स्ट सेंटेंस में देखो कितनी ज्यादा ग्रामेटिकली गलतियां आई। और अगर आपके टॉपिक को आप सीधा लिख देते, अगर आप सीधी पैराफ्रेजिंग करके लिखते तो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स का थोड़ी कम हो जाती। यस मैम। तो मैं मैंने भी बनाई है। मैं ना इसलिए कहती हूँ कि आप ना जो ऊपर टैगलाइन है वो चाहे ना लिखो, क्योंकि लिखने में ना बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं ग्रामेटिकल। तो मेरे को ये होता है कि वो नहीं लिखवाने से ना मेरे बच्चों के बेटर बैंड स्कोर मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल फर्स्ट लाइन में आ गई। तो आप सोचो एग्जामिनर क्या सोचेगा आगे। यस मैम। है ना? तो अच्छा, आप सेकंड लाइन बोलो अपनी सुनील। Therefore, many people switching job and house frequently. So therefore many people are switching jobs and houses. Jobs and houses. Many people है तो house कैसे लिख रहे हो? एक houses आएगा। तो ये ध्यान रखना है सुनील इन चीजों का। Work on the small mistakes, definitely 6 से कम नहीं जाएंगे। Work on the small mistakes, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैम मैं भी सुनाऊं? हाँ, सुना दो। हाँ। It is commonly observed that number of people frequently change their occupations and accommodations presently, while there अगर are प्रेजेंटली few. लिख रहे हो तो आर चेंजिंग करो ना। अगर प्रेजेंटली नहीं डालते, वहीं पे फुल स्टॉप डाल देते तो सेंटेंस करेक्ट था। ओके मैम। तो प्रेजेंट ही डाला है तो फिर आजकल तो आज कर रहे हैं, है ना? हाँ फिर जी। आपको आर चेंजिंग आएगा ना, ठीक है? फिर मैंने दूसरा लिखा है, while there are few drawbacks of this phenomenon, I believe this change, this style of living and working is a positive development. अच्छा, आपने फ्यू लिखा है कि अ फ्यू लिखा है? नहीं मैम, मैंने सिर्फ फ्यू लिखा है, गलत है। सिर्फ फ्यू लिखा है तो गलत हो गया, ठीक गलत है? हो गया। हाँ जी। क्योंकि फ्यू है तो फिर दैट मींस नो, है ना? हाँ, तो फिर आप ये देखो, ये आप छोटी छोटी गलतियों पे फोकस करो, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। ये छोटी छोटी गलतियां जाएंगी। हाँ, मैंने कंक्लूजन में भी ऐसा किया था। मैंने लिखा था कंक्लूजन में, टू कंक्लूड आई रीइटरेट दैट देयर आर सम चैलेंजेस इन चेंजिंग जॉब्स एंड प्लेसेस सेवरल टाइम। मैंने टाइम लिखा, टाइम्स लिखना चाहिए था यहाँ पे भी ना। हाँ, देखो। इन दिस, यस, आई गॉट टू अंडरस्टैंड मेरे एस के ही मिस्टेक हो रहे हैं। हाँ, और दिवांगनी, मैं आपको बताऊं, मेरी एक और स्टूडेंट के, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उसने मुझे जैसे ही पेपर करके आई, कहती मैम मैंने प्रूफ रीडिंग करी, मैंने 7 टाइम्स 7 प्लेसेस पे अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर ली अपने आप, प्रूफ रीडिंग 2-3 बार करके। हाँ, और उसके 7 थे राइटिंग में। ठीक है, हम भी जल्दी जल्दी लिख के ट्राई करेंगे मैम पढ़ने को दोबारा से। हाँ, बार बार, ठीक है? हाँ जी मैम, ठीक है, चलो। अच्छा, हम इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि nowadays it becoming an upcoming trend that people are changing their career and place of residence many times during their lifetime. मेरी बात सुनो, अभी परमिंदर आपने बोला nowadays it becoming a trend, है ना? It is becoming. It is becoming, हाँ, फिर ठीक है, it is becoming It is an becoming an upcoming, upcoming trend. हाँ, वो ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब अगला ऐसे देखे। यस मैम। हाँ, an increasing number of people change their career during their work life. What are the reasons? अब इसमें reasons मांगे हैं। And is this a positive or negative development for the society? ये पिछले वाले ऐसे वाला ही है, but reasons उसमें नहीं मांगे थे, इसमें reasons मांगे हैं। ओके, तो आपको ये समझ आ गया कि इसमें reasons डालने। ये इंद्रुप ने अभी नया दोबारा से ऐसे लिखा है, तो उसने 4 पैरा ऐसे बनाया, एक में reasons बता दिए और एक में उसने बता दिया है, उसने टोटली डेट्रीमेंटल कर दिया सोसाइटी के लिए, नेगेटिव ही कर दिया, और इसने पॉजिटिव लिखा ही नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं लिखा पॉजिटिव ये भी मैं बताती हूँ। जब ये ऐसे लिख रहा था ना, मुझे कहता है मम्मी रीजंस और पॉजिटिव पॉइंट्स तो सिमिलर है, ओवरलैपिंग है, तो मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूँ रीजंस वाला पैरे में। तो देखो क्यों लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, समझ गए? तो Previous रीजंस, job, they're not getting a satisfaction. That's why हाँ, they're तो changing the job. फिर वो एडवांटेजेस, अगर वो अलग पैरा बनाता ना, ओवरलैपिंग आनी थी आइडियाज की, तो उसने फिर इसको वन साइडेड ऐसे एक तरह से एक पैरा रीजंस का कह दिया और इंट्रोडक्शन में लिख दिया इट इज डेट्रीमेंटल फॉर सोसाइटी, और उस पैरे में उसके सारे नुकसान लिख दिए। तो इसमें कोई रेपिटेशन नहीं आई, ऐसे भी अच्छे लेंथ का बन गया। और सो यू कैन जस्ट रीड इट एंड सी कि कई बार आपको थोड़ा सा हटके भी लिखना पड़ जाता है, आपको जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव्स भी लिखने हैं, क्योंकि जब आप लिखने लगोगे फिर आपको रियलाइज होगा कि वही पॉइंट्स आ गए दोबारा से, तो फिर आपका वो मतलब रेपिटेशन वाला रेपिटेटिव ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला ऐसे आए तो इसको ऐसे हैंडल कर लेना रीजंस वाले पैरे में, क्योंकि रीजंस एंड पॉजिटिव पॉइंट्स आर क्वाइट ओवरलैपिंग, पर लिखना रीजंस के उसमें है कि पहला रीजन ये है, दूसरा ये है, क्यों करते हैं चेंज। और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट में हमने लिख दिया कि ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है सोसाइटी के लिए। ठीक है, चलो आज हमने 30 तक ऐसे डिस्कस कर लिए। ओके, काफी बच्चे हैं क्लास में, वैसे मैं ग्रुप्स में डाल दूंगी। कल इट्स माय फादर्स 91st बर्थडे और मैं मोस्ट प्रोबेबली उनको विश करने जाऊंगी। अगर मेरे को जाना पड़ा तो मैं कल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कल अगर मेरे को जाना पड़ा तो मैं कल की क्लास ऑफ करके सैटरडे को कर लूंगी क्लास। सैटरडे को नॉर्मली मैं क्लास नहीं लेती हूँ, तो मैं सैटरडे को क्लास कर लूंगी। ठीक है, Ma'am, wish from our side also. ओके ओके ओके। Wish also from our side. Ma'am, from my side also. Wish also from ma'am all of us. यस यस, ऑल ऑफ अस, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से। ठीक है ठीक है। पर इन केस मैं नहीं गई तो फिर मैं आई विल बी कंडक्टिंग द क्लास। ठीक है, ओके मैम। ग्रुप में मैं ग्रुप में डाल दूंगी मैसेज। ठीक है, फिर मैं सैटरडे को क्लास कर लूंगी। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ, जैसे बोलो। आज आपने पांचों ऐसे इतने अच्छे से समझाए, सिर्फ एक बारी अगर हम पांचों ग्राफ को एक बारी समझ पाए जिस ट्रिक से आप लिखा रहे हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं बताऊं आपके, हाँ बोलो, अभी आवाज नहीं आ रही दिवांगनी। अब सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ, आप सुन रहे हैं। हाँ मैम जैसे आज अपने ना पांचों ऐसे एक बार में दिखा दिए और इतने अच्छे से ढंग से दिमाग में बैठ गए, अब गलती नहीं होगी। वैसे सिर्फ एक बार ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ग्राफ को साथ में डिस्क्राइब कर पाए एक बार, ऐसा कि हाँ देख लो इसमें ऐसे लगता तो है, ऐसे करती हूँ सैटरडे को ना लंबी क्लास कर देती हूँ, या अगर कल ही कर दी तो कल ही वो क्लास कर देती हूँ ग्राफ की, और पर फिर वो जीटी वाले स्टूडेंट्स की ऑफ हो जाएगी उस दिन क्लास। आई कैन डू दैट। अच्छा, नेक्स्ट वीक प्लान कर लेती हूँ। ठीक है मैडम, एक दिन लेटर की क्लास भी ले लो प्लीज। तो लेटर्स की ना है नहीं कुछ क्लास। मैंने वैसे एक अपनी टीचर को बोला हुआ है, फैकल्टी को, कि वो लेटर्स वो फॉर्मेट्स करा देती है लेटर्स का 1 घंटे का। मैं उसको बोलती हूँ किसी दिन अरेंज कर लेगी, वो करा दे। प्लीज मैम सैटरडे को यही वाली करा देना, ग्राफ वाली प्लीज। हाँ जी मैम, प्लीज करवा देना एक बार। बहुत बढ़िया रहेगा मैम, ताकि एक बार में समझ आ जाए। ठीक है, तो सैटरडे को ना फिर मैं फ्राइडे की ऑफ ही कर रही हूँ। कल की क्लास में मैसेज डाल देती हूँ, और सैटरडे को मैं आप सबको ना ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स करा दूंगी। और रीडिंग की क्लास जो है ना, वो भी फिर क्योंकि ग्राफ्स का सब डिफरेंट है, इट विल बी अ लेंथी क्लास, सो इट विल ओनली बी फॉर ग्राफ्स ऑन सैटरडे। ठीक है, आज रीडिंग होगी? आज मैंने रीडिंग, वो जो अगली रीडिंग है वो मैंने करी नहीं है, पर मैं आपकी रीडिंग की क्लास अभी करा देती हूँ। ठीक है, तो वील गेट बैक आफ्टर 5 minutes एंड वील डू द रीडिंग। मैम सैटरडे को फिर रीडिंग नहीं होगी मैम क्लास? हाँ मैम जीटी की क्लास नहीं होगी कल? नहीं, कल फिर परसों ग्राफ करा रही हूँ, तो फिर जीटी की नहीं होगी। कल तो मैं कल की ल्यू में, कल थर्सडे है फ्राइडे है? कल फ्राइडे है ना? कल सैटरडे नॉर्मली आई एम नॉट टेकिंग क्लास ना, तो सैटरडे को फिर मैंने क्लास लेनी है ग्राफ की। कल मैं ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, कल मैं ऑफ कर रही हूँ, तो सैटरडे को। हाँ बोलो मैम, अगर आप कल आओगे तो मैं आपको मिल सकती हूँ? मैंने आपको मिलना है, बहुत मन है। मेरा श्योर नहीं है अभी। अच्छा ओके, हाँ, अब मुझे पूछ लेना, मैं आई होंगी तो मैं। ठीक है। हाँ चलो मैम, हम सैटरडे को रीडिंग होगी मैडम। कल आपको वो फिर ऐसे लिख के भेजे भी ना, क्योंकि अगर आप ऑफ हो तो भेज दे। नहीं, वो राइटिंग टास्क तो भेज देना, वो तो मैं जर्नी के टाइम में कर दूंगी ना।
ठीक है मैम। हाँ, वो तो मैं जर्नी के टाइम में फीडबैक्स करा दूंगी। I'll be traveling, ठीक है। हाँ, तो I'll Okay, cover ma'am. that। हाँ, वो मैं कर दूंगी। मैडम रीडिंग होगा फिर सैटरडे? रीडिंग नहीं। देखो, ग्राफ 5 तरह के जो ग्राफ है कराऊंगी, तो रीडिंग का टाइम नहीं बचने वाला है फिर। यस हाँ मैम सही है। ठीक है, चलो, के टास्क। ओके। Okay, अभी okay. we'll get back at 11:30, ठीक है। चलो, ओके मैम। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, बाय।